ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिः। नित्यो नित्यानाम् एकनाश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। मनसैवानुद्रष्टव्यं नैव नानास्ति किञ्चन। मृत्युसा मृत्युमाप्नोति यः नानेव पश्यति। विद्यते हृदयाग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया। क्रियन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पाणिपादो यमनो गृहीता पश्यत्यचक्षुषा शृणोत्य कर्म। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्राह्यं पुरुषं महान्तं। यस्य देवे परावक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। ज्ञानामृतेन कृतस्य योगिना नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसा तत्त्ववित्। यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जगिदम् उपासते। नामो वैश्यसूत्र नाछि मोर पिता माता पत्नी। नामुकाहर पुत्र नामु ब्राह्मण नामु क्षत्रिय। नामु वैश्यसूत्र नाम रूप गुण नाही मोर किछि। मु अनादि अनंत
शिशु जुबा वृद्धनु हई मुकिछि मु नित्य सदा जाग्रत जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति नाही मोर नाही किछि कुल गोत्र नामो ब्राह्मण नामो क्षत्रिय नामो वैश्य शूद्र मु निराकार निराधार मुहि देश काल विवर्जित अजर अमर शुद्ध बुद्ध मुहि कलंक कला वर्जित अजय अभय स्वरूप मोर मु विराजे सर्वत्र नामो ब्राह्मण नामो क्षत्रिय नामो वैश्य शूद्र मु ज्ञान अज्ञान खंड मूरत मुहि अमृत मु शुद्ध चैतन्य क्रिया विकारहीन भूत मु निजे ब्रह्म सत्य सनातन मुहि परम पवित्र नामो ब्राह्मण नामो क्षत्रिय नामो वैश्य शूद्र मु परम धाम मु परम धर्म मु निजे परमानंद मु परा परा मु माया धार मु कैवल्य आनंद पुराण पुरुष परम तत्व मु
ଅତି ବିଚିତ୍ର। ନାମୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନାମୁ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ନାଛି ମୋର ପିତା ମାତା ପତ୍ନୀ, ନାମୁ କାହାର ପୁତ୍ର। ନାମୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନାମୁ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନ ଶୁଭିବ କହିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଛରେ ଆମ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ତାରି ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ମୁଁ କିଏ, ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ, ସେ ମୁର୍ଦାର ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ ମଲା ମୁର୍ଦାର ସେ। କାହିଁକି ମୁର୍ଦାର କୁହାଯାଉଛି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ନିଜର ଚୈତନ୍ୟତା ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ସଂସାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ମସ୍ତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟିଏ। କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, କମେଇଥିବା ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ତାକୁ ପୋଷିବି ତାରି ଚିନ୍ତା କରିବ। କେଉଁଠି ଆଉ ଅର୍ଥାଗମ ହେବ ତାରି ବିଷୟରେ ଭାବିବ। ମୋର କେମିତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁ ତାକୁ ହିଁ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ସେ କହିବ, ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯଦି ପଚରାଯାଏ ମୂଢ଼ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିବେ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ ନ ଜାଣିଲି ମୋର କ'ଣଟା ହେଇଗଲା? ଆରେ ତୁ ନ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଜନ୍ମଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁକି? ଇଏ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେବତାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି, କିଛି ଆଲୁଅ ଅଛି କି, ଯାହା ଆଲୁଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବି। ମନେ ରଖ, ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖ। କବୀର ଦାସ, ସନ୍ଥ କବୀର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେଖିଲି, ସେଇଦିନ ଏଇ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତମେ କହିବ ଜଣେ ତନ୍ତୀ ଲୁଗା ବୁଣୁଛି, ଏଇଟା ଲୁଗା ବୁଣିକି ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ତର ମଳ ସଫା କରୁଛି, ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀ ପାନ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁ, ଆମେ ଆମ ବିଚାରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିଦେଇଥାଉ ଆମ ବିଚାରରେ। କିନ୍ତୁ କବୀର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଛୋଟ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉ ନା, ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝି ବି ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଭଲ ନା ମନ୍ଦ, ଖରାପ ନା ଭଲ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ କରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି। ଏକଦମ ମନେ ରଖେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ବସିଛୁ ସବୁ ଧରନ୍ଦ।
आम पाख पड़िशा जी जो अच्छी तांको ऊपर पचारिया कहवाई आम सब धुरंधर जहाँ उपर पचार आम अनर्गल कही चल किंतु निज भीतर आलू को देखिए चलला कि निज भीतर जो चैतन्य सत्ता अच्छी ताको देखला कि ताकू से देखिपार निज भीतर जलुवा आलुटा से देखिपार सी अन्य भीतर केते अंधार अच्छी ताकू ही देखुची ता द्वारा कौन हो ना से जानी सारा जीवन से आस्ते 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 नष्ट हो चढ़ी जापाई निज भीतर आलोक देखा लोकटी हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण आम जीवन भितर जदि आम भीतर किसी आलुओ अच्छे जी कि मत देखी दूसरी जहाँ पर से पड़ुची मत देखा बुझीगली सी किए आम ताकू न बुझिकी तार जो प्रकार शारीरिक मानसिक जो प्रकार तर विकृति का दुर्गति अच्छी से गुड़ा कहूँ ये एमती लोक से सेमती सेमती या द्वारा पाँच कौन मनीष निजर आयु हानि हो जाऊँ सी संसार को आसिक एति समय बर्बाद करी गला किंतु यदि से निजुक भितर आलुटा पाई जाए टिके टिके देखा आरंभ कर दिंता धीरे धीरे ता भर सामर्थ्यटा बढ़ी बढ़ी जाता ता भर शक्तिटा बढ़ी बढ़ी जीव कौन शक्ति ना अन्य को देखार क्षमता से हासिल करने संगे संगे आस्ते 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 से अन्य मान सहित मिसी जा पारता एकाकार हो पारता जदि से एकाकार हो पारता कौन होता निर्भय हो जाता तापर बोझ आ रहता नहीं भारा आ प्रति रहता ता भीतर किसी कलमश रहता नहीं ताको निंदा करने कि रहता तेणु मनुष्य एडे बड़ प्राणी सृष्टिर एत बड़ जीव सी यही जीवटी न जाणुवा जो कि अवस्था अच्छी तेणु कहुच्छे अज्ञान महापाप 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 अज्ञान कौन ना निजको न जानिबाटा ठारो महापाप अब जगतर ना आम तो समस्त जाचु मो किए मो ना कौन मो घर किए मो बापा किए मो माँ किए ये सब विषय आम जाचु किंतु जदि पचरा जाए मो भीतर जी आपको जानूची ताकू मुझे जानी कि जी मो भीतर अच्छी जी सब कथा देखुची जानूची ताकू मु जानूची से विषय मत धारणा नहीं किंतु मु संसार कही चलती मुझे अमुक मु समुक बहुत चिंता करिवार कथा सावधान होगापी पड़ो ए कथा जे मु मोर निजर स्वरूप को जदि न जानिली सब बर्बाद हो गला शेष पर्यायर बहुत दिन स्वामीजी आमको विभिन्न विद्या पढ़े कई विद्या पढ़ेले सा विद्या जहाँ विमुक्त है अन्य किसी विद्या दरकार नहीं मुझे सब विद्या जानी दरकार नहीं सा विद्या से विद्या जहाँ विमुक्त है जी मत मुक्ति दब ये विद्याटा को पढ़े पढ़े शेष पर्याय देखले लोक होना तेणु अणुगीता लिखिले द्वितीय अध्याय 11 श्लोक ठार 31 जिते पर्यंत अच्छी से सब पढ़ तार भीतर समुदाय गीतार सारांश दे दिखाई से कहले मनीष खोजी खोजी पाइबनी कौन पर से गीता पढ़ुची जापर किंतु अति कम एति पढ़ू से बुझीपर गीतार रहस्य कौन गुरुर दृष्टिभंगी देख आमको मंगल करने आमर उपकार करने अति कम एठू एति पढ़ी तू निज जीवन में प्रयोग कर एति से बाट बतौ तथापि जो न हो कहते तो स्वरूप तू न जाणी चलजु ए संसार से कौन कले ना आम स्वरूप गीता लिखे निजर स्वरूपटा कौन ता विषय अति कम प्रत्येक दिन ताको पढ़ एवं सबु समय ताको सावधान रुह नहले जीवन बर्बादी ये कथाटा कहवाई गला बेले जदि आम विचार करवा आम दृष्टि को देख आम दृष्टि आम क्या केमी देखुचु जापर गोटे मनीष को आम 25 जन देखुं आम ढंगर आम विचार कर देखिए आम से विचार करूँ ना बाबाजी टीए एति दाढ़ी अच्छी गोटे गछ मूल्य से बाटी कि 4 जन लोक गले जड़े ताको देखु देखु कौच हौ छिंडा लुगा पिंधिकी सेमती दाढ़ी रखी शोईथा बड़े बुझी बुझी मु तोरी भाया दिने थी
ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ରହିକି ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଲି। 3 ଥର ଖସିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଲି। ସେ ସୈନିକମାନେ ମୋତେ ଧରିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ଯେ, କାହିଁକି ଦେଲେ ନା ଗୋଟେ ହାରଟିଏ ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇକି ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ଦେଲେ। ଏତେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ଆଜି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଛୁ ଦାଢ଼ି ରଖିକି, ତତେ ଧରା ପଡ଼ିବି ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆର ଲୋକଟି ଥିଲା, ସିଏ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏ ତ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ମୋରି ଭଳିଆ। ଆର ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ଘଟଣା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ। ଇଏ ସେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶୋଇଛି, ଗୋଟେ ଛଳନା କରିକି ଶୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଖବର ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ କହିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଶୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସିକି ସବୁ ଖବର ଦେବି, ତୋତେ ରହିପାରୁନି, ନହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥାନ୍ତା କହିକି ସେ ପଳେଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କିଏ ହେଲା, ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି ଭାବିଲା। ତୃତୀୟ ଲୋକଟି ଆସିଲା, କହିଲା, ବାଃ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତୁ ଶୋଇଛୁ, ମୁଁ ଦେଖ ଆଜି ପୁରା ଢାଳରେ ଢାଳେ ପିଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ପିଇ ଦେଇଛେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବର ବାହା ହେଇକି ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ପଳାଉଛି, ପୁଣି ଆସିକି ମୋ ବେକ ଉପରେ ଘାଉ କରି ବସିଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିକି ବସିଯାଉଛି। ତୋର ବି ସେୟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ବାଃ, ତୁ ସେରକମ ମସ୍ତିରେ ଶୋଇଥା। ଚତୁର୍ଥଟି ଯୁବକଟିଏ ଯାଉଥିଲା, ସେ ତାର ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଶୋଇଛି, ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତା ମାଛି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା, ତା ମୁହଁ ଉପରେ ବସୁଥିଲା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ କିଛି ଭୋଜନ ଅଛି, ଯିବେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ସିଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ଆକୁ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ। ଇଏ ତାପରେ ଗଲା ପରେ 4ଟି ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ? କେତେଟା ଲୋକକୁ ଦେଖୁଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ଜଣ? 4 ଜଣ। 4 ଜଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ଜଣକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଚୋର, ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଗୁପ୍ତଚର, ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଗିଲା ସେ ମଦୁଆ, ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜଣେ ସନ୍ଥ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ବୃତ୍ତିଟା ଥିଲା, ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଯେ ଏ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ମସ୍ତିରେ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲା। ସେ ସନ୍ଥଟି ବି ବୁଝିଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲା, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେ ଉଠିକି ଗଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଯାଇଛି। ଇଏ ଏମିତି, ସିଏ ସେମିତି, ସିଏ ସେମିତି। କ'ଣ ପାଇଛି ସେ? କ'ଣ ପାଇଛି? ନିଜକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ତମ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଅମଙ୍ଗଳର କୌଣସି ଚିତ୍ର ତମ ପାଖରେ ନ ରହୁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟମ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଦରକାର। ସେଇ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇକି ସେଇ ବାଟେ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ହୃଦୟର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଫିଟିଯିବ। ଭିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତା ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜ ଆଲୋକରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଦେଇପାରିବ। ଦେଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟକୁ ତୁ ଅମୁକେଇ, ତୁ ସମୁକେଇ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ କାହାକୁ କେମିତି ଦେଖିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବ, ଏଇ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଭଜନରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା, ତୁ ହେଉଛୁ ପରମଧାମ। ଆମେ ସବୁ ମଲା ପରେ ପରମଧାମକୁ ଯିବା ନା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନା ନାହିଁ, ନର୍କକୁ ଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ବହୁତ ଦୂର, ନର୍କକୁ ଯିବାଟା ଶିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବାର ସମୟ କଟେଇଦେଲେ। କିଏ ଶୁଣୁଛି, କିଏ ସବୁ ଶୁଣୁନି, ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ? ନା ସ୍ୱର୍ଗ ମୋରି ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ।
ତାକୁ ତାକୁ ସନ୍ଥ କହୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯିଏ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଢେଉ ଭଳିଆ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ମୋ ଭିତରେ ଢେଉ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଆସୁଛି ସେ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ ଏବଂ ଯମ, ବରୁଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢେଉ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ, ବରୁଣ, ଯମ ଏଇଭଳି ସବୁ ଦେବତାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢେଉ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ 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 ଦେବତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କିସ୍କୋ କରୁଁ ପ୍ରଣାମ। ମୋରି ଭିତରୁ ତ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ତ ଢେଉ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବି କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନା ନାହିଁ? କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ କହୁନ, ଏତିକି ବି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ ବି କରୁଛୁ। ନିଜକୁ କେତେଥର ପ୍ରଣାମ କରିଛ? ଆରେ ନିଜକୁ କେତେଥର ପ୍ରଣାମ କରିଛ? ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ସନ୍ଥ କହୁଛି ଯେ ମୋରି ଭିତରୁ ଯଦି ଅନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସମସ୍ତେ ଆସି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିସ୍କୋ କରୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରିବି? ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଜାଣିଗଲି, ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରିବି? ଏଇଠୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ଜାଣିବୁ? ଆଗେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବି। ଯଦି ଜାଣିଯିବି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ମୁଁ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବି, ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଣାମ, କାରଣ ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତ ମୋତେ ଦେଖିନି, ପ୍ରଣାମ କରି ଶିଖିନି, ମୋତେ ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଦେବି? କିଏ ଦେବ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟକୁ? ଯିଏ ନିଜକୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିବ କେମିତି? ସେ କିଏ? ଗୁରୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ତୁ ନ ଜାଣିଲୁ, ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଯଦି ନ ଜାଣିଲୁ, କ'ଣ ତୋର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ? ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ଏସବୁ ବିଚାର। ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ତୁ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ସେଇ ଯୋନିରେ ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବୁ ତା ଠିକଣା ଅଛି? ତମ କେବଳ ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଖାତିର କରୁନୁ। ଗୁରୁ ଯିଏ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋନିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋନିକି ସେ ଯିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ଥରି ଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଛି, ଏତେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ, ଏତେ ଉନ୍ନତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କସ୍ତମ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମା ଘୋଷି ଘୋଷି ତା ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ମୁଁ କିଏ, ଏବଂ ତାର ଏଇରକମ ନିଜ ଯୋନିକି ସେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ଯୋନିକି ସେ ଚାଲିଯିବ। ଗୁରୁ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ତୁ ଚିହ୍ନ, ଅତି କମରେ ଜାଣ ତୁ କିଏ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣ, ଭୁଲିଯା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜକୁ ଜାଣ, ଯାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ନିଜକୁ ନ ଜାଣିବୁ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁ ନିଜକୁ ଜାଣିଗଲୁ, ତାହେଲେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଜାଣିଛୁ? ଗୁରୁକୁଳରେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା, ରାଜା ପଠାଇଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବି କିଛି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା, ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ତାର ହେଇଛି। ରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ପିଲାଟି ଯାଇଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି, ତାର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ସେଠି ସେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ସିଂହାସନରେ ବସିଯା। ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖାଗଲା। ହାତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ ନା, ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ ଆସିଲା, କି ସାର୍ ମୁକ୍ତାମାଳଟାକୁ ଦେଇଦେବ, ତାକୁ ନେଇଯା। ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ମୁକ୍ତାମାଳ ଦେଇଦେବ, ଯାହା ତା ପାଇଁ 20 ଥର ମୁକ୍ତାମାଳ ତିଆରି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଇଏ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି,
पाठ पढ़ी सारिक यही ज्ञान हासिल कला जी जी आसला बेलू ठकी देला बेलू गोटे हारटे दे दूँ ये सब कौन ये तेणु ये राजकार्य ठीक नुहे ये सब बुड़े दब राजा एकदम ध्वंस करदेव राज्य यार सेन्स ना सेन्सलेस पिलाटा चेतना ना ता भर यह कही सारापर गुरु पचारे एभली कौन अवस्था देखिल जे तार चेतना ना बोली कहल राजा कहले तमें आस देख तेणु गुरु आसिक पहुँचले गुरु पहुँच सारापर कहले पिला या करुच्ची जो से देखला जे कई गोटे साधु सन्थ सन्यासी आसिले जहाँ थिला ताको देदेला ये कौन राज्य चले तो ठकिकी लोक मैंने जाऊँ कौन हम यार चेतना शून्य से हो जाद्वारा किसी हो पार ना सेठू गुरु कहले किमित यार प्रमाण गोटे किसी दियो खाली खालीटार चेतना शून्य कहीदे गोटे काम कि सेठे माने मंत्री कहले चल देखिए तार कार्य केमी सेटा गोटे गोटे लोक सेटा गोटे हत्याकारी जेल भितर थिला जेल भितर आसिक दाढ़ी फाड़ी लगे दी आसिक गोटे सन्यासी रूप धारण करके राजा कहला मु गोटे सन्यासी ये सांगे सांगे मुक्ता मारदा देदे एबे से गोटे जादूकर होगी मैजिक देखा चल ताको देखिक आसवा ये जापर तुम पुओ कौ अवस्था अच्छी एमाने राजा मंत्री गुरु एवं राजकुमार ये 4 जन जाक गले कहले सेठी देखिले अतिकमटा बुद्धि आसो यही गोटे दाढ़ी लगे तो ठकी ना ना अतिकमटा चेतनाटा आस ये दाढ़ी लगे कि वस्त्र पिंधि जापर राजकुमार सेठी गलापर देखिले हाँ जादू से देखा मैजिक देखा मैजिक देखो देखो ये कौन कला ना राजकुमार देखु देखो मुग्ध हो गला पूरा बढ़िया मैजिक देखा ये राजकुमार खुशी होगी देखिक से मैजिक मुग्ध हो देखु देखु मंत्री कहीदेला लोक मान सब पलि जाए राजा आसुँच सब पलि जाए सबू लोक मैंने पलि गले ये राजकुमार सीटी अच्छी एवं से कटुआला माने गले अन्य माने गले से जादूगर को धरी पकेले माड़ी बसिले राजा तक सांगता ए चोर तू गोटा महादुष्ट तू हत्या करके जेल भीतर थिलु ना नहीं आज्ञा हाँ कौन कहला सी आज्ञा हाँ मुझे तू जाइक राजकुमार गोटे सन्यासी बेश दाढ़ी फाड़ी रखिकी ठकी थिलु ना नहीं आज्ञा हाँ एबे तू जादू काम करी लोक को ठकुचु ना नहीं आज्ञा हाँ ये से कौ कौ ये राजकुमार शुणुला ये सेन्सलेस हो गला यार चेता रहा नहीं ये सेन्सलेस हो गला तापर ताकू पानी फाणी उठेल तो पचारे कौन है कि कहला मु आश्चर्य हेली जी ता पूर्व दिन गोटे हत्याकारी जेल भितर थिला ता परदिन गोटे सन्यासी होगी सी देखौला रूप आज से जादूकर हो पारा हे प्रभु तो केते रूप तो केते केते रूप रे प्रकाशमान हो राजा पचारे प्रकृत चेतना शून्य किए हे राजा तम पुओर चेतना शून्य सेन्सलेस ना तमें सेन्सलेस तम मंत्री सेन्सलेस किए सेन्सलेस तम पुओ जहाँ कहूँ से सब भितर ब्रह्म को देखुच ये जो रूपटी छोटिया छुआटे केते वर्ष किशोर अवस्था अच्छी आउ किछि दिन पर से बयस बढ़ी बढ़ी जा यौवन प्राप्त हो आहरी बयस बढ़ी बढ़ी गले गृहस्थ हो आहरी बयस बढ़ी 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 गले बुढ़ी तुम तक देख ता नाटी जहाँ रहा कथा से रही कि देखला बेलू से जड़े बुढ़ी परिणत है किंतु ता भीतर जो चैतन्य सत्ताटी अच्छी ये बुढ़ी हाँपाई के दिन लगला से बुढ़ी हाँपाई अरे ता भीतर जो चेतना अच्छी तो किशोर हाँपाई के दिन लगला या भीतर जो गृहस्थ है के दिन लगला बुढ़ी हाँपाई के दिन लगला अरे चैतन्य की ता भीतर थिबा जो सी तार नाम रूप को नहीं कही जाऊँगी किंतु ता भीतर जो चेतना शक्तिटा थिबा जो तो सी रही ना नहीं सी हूँ सी हूँ चिन्हबार प्रयोग ताकू आम जानूना
आमे जानुछंती काहाकू ना बाहर रूप देखिक आमे जानुछु मु केते इनकम कली केते कौन कली कौ अवस्था रही मो घर केमती मो द्वार केमती मो परिवेश केमती यही अवस्था मु रही विचार कर गुरु ताकू ही देखी दूची वेद उपनिषद से ज्ञान ही आमको दिहूँ जे तमें संसार को बहुत कथा जानीगल किंतु निजक जानापी तुम अवकाश ना निज को भल भाव जापर जो संसार प्रत्येक पदार्थ तुम अलग हो रोच तेणु जो तुम निजक निजे नमस्कार कर जान तेणु जहाँ को देखना कहीं तुम नमस्कार करना ना या गुरु आमको मंत्र दे कहते मैं ही तो हूँ ये मन रही पारनी गुरु ता कहते संसार तुम जहाँ कि देखुच मु तो से यही भावटा आसला बेले मु किए बोली जानले सीना मुई तो से बोली कहबी ये दांत हाथ आंगुठी मार कौटी पाटे खाइबू आंगुठी खाई जा तेणु पूरापूरी ज्ञानटा मनुष्य को शुद्ध करे पवित्र करे मनुष्य को बलिष्ठ करे मनुष्य को दीर्घस्थायी करे जड़े यदि बुझीगला ये तत्वटा अनुभव करगला तार संसार जावतीय प्रकार असुविधाटा थिले मध्य ता भीतर कौन प्रकार परिवर्तन घटना जनक जो अष्टावक्र पाखे जा पहुँचुंट पहुँच सारापर अष्टावक्र पाखे सब कथा शुणी सारा जो जनक निजे उपलब्धि करने जाऊँच कहते अरे ये स्वरूपटा पुणी कौन कौन गोटे जिनस सी मोर ये जो स्वरूपर कथा जोटा गुरु कहले ये स्वरूपटा पुणी किमिति ये स्वरूपटा कौन है से निजक निजे खोजते ये स्वरूपटा केमिति कौन है स्वरूप जानी सारा पर से कहते शब्दर प्रभाव तो आम पढ़ीछु गोटे शब्द पाखक तार उल्टा शब्द गोटे अच्छे से जो से शब्द को लेकिन आम जहाँ कि किंतु आमर रूप केमती कौन केमती आम जानीपारूँ न जानी पारुवा जो आम भर व्यतिक्रम हो तमें किए ना मुझे मास्टर तमें किए मुझे डाक्टर तमें किए मुझे इंजीनियर तमें किए मुझे प्रोफेसर तमें किए मु गोटे बिजनेसमैन तमें किए मु गोटे कुशली कर्मी यही तुम परिचय दौ ये तुम परिचय जनक निजक प्रश्न पचार ये कौन मोर परिचय ये मोर परिचय नुहे मुझे डाक्तर ये मोर परिचय नुहे मोटे मास्टर ये मोर परिचय नुहे मोटे इंजीनियर ये मोर परिचय नुहे एगुड़िक सब कौन ना मु जो विद्या सब शिखी पढ़ी जो गुड़ाक ये हूँ तारी प्रतिकृति तारी जिनसपाई मु डाक्तरी विद्या पढ़ी तेणु मु जड़े डाक्तर बोली कह मु इंजीनियरिंग विद्या पढ़ी मु जड़े इंजीनियर बोली कह अरे तुम से परिचय तुम से परिचय देख आम परिचय जानू मोर किए मो बापा ना कहीदे तो किए मो बापा ना ये तुम परिचय निर्बोध तुम परिचय हूँ जनक ये कहते ये परिचय केमी हो गोटे डाक्तरटे जाऊला छोट एक्सीडेंट हो गला जमी होगा मुंडटा ब्रेनटा किसी कम देला जमी कम नदेला से आस्ते 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 एभली अवस्था आसिक रहा ता बापा जो पचार मु किए बापा को चिन्ह पार माँ जो पचार कह किए चिन्ह पार सांगसाथी मैंने जो पचार किए चिन्ह पार से क्या चिन्हुनी दिने तार गोटे सांग आसला आसिक पचार लगा मत से निश्चय चिन्ह आम सांग हो पढ़ुलु मत चिन्हवानी आसिक पाखे पहुँचला पहुँचिक पचारा बेलू चिन्ह पार कि जापर से कहला कौन कर 3 वर्ष बीतीगला से भाव से अच्छे छोट छुआ ठार हीन कि तो मुंड रोनी से जान कौन तेणु या पूर्व से कौन थी गोटे डाक्तर किंतु वर्तमान स्थित से कौन अच्छी कि ना या पूर्व से कौन थी डाक्तर गोटे घटना घटीगला तापर से कौन है किसी ना परिणत है यही अवस्था आम जो जो नाम नहीं जहाँ नहीं संसार बचापी चेष्टा कर गोटे कि गोटे घटना एमती घट जाऊ आम कि नुहे बोली जना पड़े यही हूँ आम परिचय कि नुहे
कौन रूप में आम नहूँ कि नुहे आम कि आम निज कि ना कि भाविक चलचु ना कौन कम कहूँ अहंकार आम शेष 3-4 वर्ष गलापर से डाक्तर को पुणी आ शिक्षा करा शिखले धीरे धीरे माने आ कहवा कथा पाठ टिके शिखा पुणी आरंभ कले आम घर को जड़े होमिओपैथिक डाक्तर आसते बापा गोटे बही होमिओपैथिक बही से छपे से होमिओपैथिक बहीर दाम हूँ 1200 टका से 1200 टका पर से बहीटी छपे सारी गले शिरडी साई बाबा को देखा करें शिरडी साई बाबा को देखा करने जाऊ पहाचर गड्डी से पड़े हाथ भांगीदेला गोड़ भांगीदेला तापर सेठू से रही आसिक पहुँच सारा कौन जगार देखागला ब्रेन आउ काम कर अश्विनी हस्पिटाल से रही एने बही सब आम पाखे रहा 2 लाख टंकार बही आम सब से अवस्था रही बही को खाली अनेक बसिलु मूषा खाइबे कि कौन करेंगे ता अवस्था सीधा रहा ये पिला ता ब्रेन काम देलानी जी कि डाक्तर फटफाट जहाँ पचारे औषध कहीदेला से मुंडे तार किसी काम देला ये हूँ आखि देखा कथा आम निज अंगे निभेवा कथा जी कि काली डाक्तर कहीकि सब जिन धड़धाड़ बतई दूसरा आज सी जापारे सी निजे कि से अवस्था से रोच आम समस्ते सेमती गोटे घटना कौन समय एक घटना घटी नजो कहीपर नहीं से घटना घटला तार जो दुर्गति है आमर मध्य से दुर्गति हम किंतु ग्यारंटी कर दिया दुर्गति तुम हेनी आश्वासन आम पाइले किमती हेनी मुंडक आसो ना नहीं आम कमी आमर कहीं हेनी ना तुम्हें जदि प्रकृत में गुरु ज्ञान नहीं सारा तुम यदि बोध भितर पशि आस मु किए मु जानी आ साक्षी भाव तुम रही शिखिल ताले जो साक्षी भाव तुम रहा बेले मु बोली कि नुहे बोले शून्य जना पड़ी से जब शून्य हो तुम एक्सीडेंट है शून्य हो तो बोट रही एवं तो शून्य तो अच्छ से भी से शून्य अवस्था रहा तुम कौनटा हो कौन हो जो विद्याटा तुम शिखि फल कौन से दुर्गति आसला साक्षी भाव में जब रही निजक रखिपार जदि प्रत्येक जिनसर मुझे द्रष्टा और साक्षी पारिली जेकोसी घटना घटिले ताठू मु अलग हो रही ना ये हूँ मोर जो तपस्या ये हूँ मोर जो साधना ये साधना बल जदि मु द्रष्टा साक्षी भाव में रही शिखिगली ताहले जेकोसी परिस्थिति आसुना कहीं जिते मु मोर परिचय दे पारुनी कि मोर परिचय मो मूल पाई सारी जो से स्थिति में रही ग्यारंटी जो माने विद्या को शिक्षा कर अवस्था ये बंची था मु देखिली मो हाथ जोड़ी जोड़ी बसी लक्ष्मीधर स्वाई हाथ जोड़ी जोड़ी बसी हाथ में घंटाटे पिंधुं सकाल उठी उठी पायखाना गले झाड़ा गले सब गले मुझ सब गुड़ाक डिटेल देखी कुआड़े जाऊे कुआड़े जाऊे आखि कुआड़े बुझी क्या कौन क्या देती क्या नहीं कार खाइली कौन कर हिं झामरास पशि भितर झाबड़ पशि ना नहीं आम समस्त भर से पशि किंतु सबको मुझे देखुची लक्ष्मीधर स्वाई जीवु कुआड़े तो पछाड़ जाइए तोते भितर थी सब गुड़ा देखुची ता आड़ थर ना यही अवस्था तू रही पार्लु यदि से साक्षी भाव में तू रही पार्लु तोर दुर्गति नहीं गुरु से बोध करवा जो आमको दौर कौन कौच ना ये हूँ तोर साधना फल ये हूँ तोर तपस्यार फल तू जो दिन निजक शून्य कर शिखिजु जो दिन निजक शून्य कर बंची था अरे देख ये रमेश दास केमती कषि कहूँ हाथ केमती कर देख केमती आखि कर देख केमती कौन कर बुझे देख ताकू पुणी लोक मान सब शुणुं खुशी भी लगुच लज्जा नहीं से निजक निज कौच कौन से कहते खुशी होवार आनंदित हबार कौन अच्छे यही भाव में जी निजक प्रत्येक समय तर्जमा कर जाऊँच देखी शिखी ता जीवन में दुर्विपाक आसोनी मंत्र गुड़ाक रखुच ना ना मुंडे ना शुणुच खाली अरे ये हूँ बंचार मंत्र तेणु रूस देश में कौन करागला जदि लोक मैंने कम्युनिज्म सब ननेले इलेक्ट्रिक शक देकर ब्रेन को माइनस कर दिगला उड़े दिगला सी आउ रही जो बुद्धि नहीं कि से विरोध करुला गवर्नमेंटर से बुद्धिटा को उड़े दिगला एवं जमी आम गवर्नमेंट सब हो बुद्धि गुड़ाक सब उड़े दिहूँ आमको सब कारागार बद्ध कर दिया
आम चेतना को सब बांधि दिया आमको कुआड़े ऊपर बाहर को जावाई दिया होनी आस्ते 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 मनुष्यर समस्त बुद्धि को नहीं निया किंतु जब तुम साक्षी भाव अच्छे मो बुद्धि जहाँ थिला नहीं जाऊ मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना घोषा है ना नहीं तापता को न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिव यहीटा केवल मन रख आउ मुझा नुहे तो कहीदेल क्या मन रखापी गुरु कहते चिदानंद रूप शिवोहम शिव मुहु शिव स्वरूप मंगल स्वरूप तेणु रशिया प्रयोग करा आमर कौटी प्रयोग करा जनक ब्रेन ड्रेन जब कर दिगला ता ब्रेन टाक जब एपाक सेपाक कर दिगला सी साधारण शिशुठार हीन हो तेणु मनीष कहीपर मुझे बाथरूम पड़गले आम मिश्र सार तर हेमरेज है सांगे 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 पाद टे खसीगला से मरीगल केते संभाल निजुक अच्छे जी द्रष्टा साक्षी भाव में सब रही शिखला प्रत्येक पाउंडटा पड़ू पड़ू से बाथरूम को जाऊँगी धरला टैपटा पे बुलेला यही पानी सब झरला यही आसला मु देख ढाल नेली नहीं कहीं गाधोचे देख मो देह केमती शीतर थरी जा मो देह थरुच कि मो भितर अकंप अवस्था अच्छे अरे एगुड़ा सब बुझीबनी केमती मोर कंप्यमान हो किए मोर शरीर देखुची किए मु अकंप मुझे से आत्मचैतन्य मोर कंपन ना मु सब शांत स्थिर मोर एगुड़ा सब कि ना मु केवल द्रष्टा साक्षी संसार सब देखुची बुझुची जानूची मो निजुक निजे अनुध्यान करुँच ये तत्व गुड़ाक ये महानता गुड़ाक न बुझा जे सत्संग बसवार योग्यता आम ना आमको बुझापी पड़ो ये अवस्था तेणु प्रत्येक स्थिति प्रत्येक अवस्था चतुष्पार्श्व जो जो घटना जो जो दृश्यावली घटना सब घटुची जो चिंतन सब घटुची ये चिंतन सहित निजक सामिल करनी गोटे पिंपुड़ीटे किमिति जाउची किमिति जंदाटे किमिति गात खोली पकाउची किमिति गुंडुची मूषाटा देखुची मुझे किमिति डिया मारिक जाउची ये गछ गुड़ा काम लगे से खाई जाउची मु देखिले आज गोटे मूषाटे एडे मूषाटे आम छात पर मरिक पड़ी काठ भाया से मुझे गोटे कागज नहीं ता लांगुटा धरी फिंगी देवाई भाविली ना कि खाईज बोली भाविक नापी गला बेलू बापू मो हाथ कागज नहीं गला कहला जहाँ फिंगी दूसरी बणु कही फिंगीदेला मूषाटा या पूर्वर मनीष देखिले केते बेगर पलाऊला मूषाटा पलाऊला ना ता भीतर चेतनाटा तक पलैया साहाଯ୍य करूला किए कौटा ठीक देखल ना नहीं अरे मूषाटे जी पलि जाऊला आज गोटे काठ हो पड़ी एवं मु गोटे चेतन था लोकटे मूषाटा देखुला खाऊला आज से मरिकी पड़ी कही आने गला बेले गोटे कागज व्यवहार करुँचे मोर जो शवटा पड़ न कि ये जो शवटा मोर पड़ी अति प्रिय बोली जहाँ को कहला मोर निजर अति आत्मीय पत्नी पुत्र कन्या मोर बंधु बांधव मोर अमके समस्त आसिक अन यहाँ परम धाम गला ना नरक धाम को गला ताकू छुईबे ये व्यवहार मूषाटा भाई हम चेतना थिले सीना तुम देख प्रत्येक प्राणी जहाँ चैतन्यर अभाव हो जाए छुईवाई पाखक जाऊ अर्थात ये बुझा पड़ी जे अज्ञान अवस्था जो मैंने अच्छा जो मान चेतना शून्य अवस्था अच्छा से मनुष्य पदवाच्य नुहति जीवित नुहति से मृत मृत से पूरापूरी देख ये तुम चतुष्पार्श्वर चैतन्यर केमती प्रवाह चलती जहाँ को देख से जो कथा कहू जिमी जहाँ कहू चेतना स्वामी जी गोटे परंपरा रखिदी जाइए पारा मैंने आस खावाई दब से जहाँ खातु दब दिया चलती मुझे 15 मिनट बसिक देखे से सब माने भीतर प्रकृति जहाँ अच्छी जन पेट पूरीगला फर उड़ी पड़ो ठक 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 तार डेणक पिटिक जब तार फटोटा उठेदेली से चेतन हम ना जड़ हो ये जो अवस्थाटा से पक्षी जो उड़ीकी जाऊँगी सी नुहे समुद्रटा लहरीटा आसूची ता फटो उठेदेली से कौन हो स्थिर हो से भाव में मनुष्य तो तार चैतन्य को बुझीपारूनी ये जड़ अवस्था को प्राप्त हो जड़ अवस्था प्राप्त होगापी से जन्म है देवदुर्लभ जोटा मूलर कहते एडे बड़ दिव्य शरीर से पाई ये शरीर जदि ता भीतर एतिक बाट
उल्लसित न हो पारला गुरु को पाई सारा पर प्रफुल्लित न हो पारला आनंदित न हो पारला मस्ती रही न पारला जमी आर्थर सत्संग में कहती केते जन आम आनंद मग्न हो पार मु सब मस्ती अच्छी सब मस्ती अच्छी जी ता भर चैतन्य को बुझीपार से गछ भर फूल फुटुवा भितर से चैतन्य को देखिपर बारंबार कौचे कथा महुमाछीटा केमती फूल महू संग्रह कर महू रखुची सब तार चेतनाटा थिबा जो से करुची प्रत्येक प्राणी ता बाटर जाऊना कहीं किंतु बिना चैतन्य से जाऊनी तेणु सब मूल वस्तु किए क्या चिन्ह क्या आम आसछंती संसार मूल कथा होची ये चैतन्य को जानिया पड़े गुरुंकर उपदेश होची हमको जे तमे एतिकी जानी जा तमे मोर परंपरा रक्षा कल तुम तीन कूल उद्धार है तुम वंश परंपरा क्रम एटा उद्धार है जी तुम ठार से वंश जो जन्म नब से कथा सब शुणु 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 ये प्रकार विचार ये प्रकार भाव रहू 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 सी से भाई स्थिति को पहुँच जी ताको एगुड़ा जीवन में प्रयोग करी नब तार निर्भय हो डर भय तार किसी रही से सब बुझे जे मोर स्थितिटा हूँ चैतन्य स्थिति अन्य किसी नुहे ये हूँ मोर स्वरूप मु मो स्वरूपटा को भूली जा अर्थ मो निजर महापाप परिणत हो तेणु स्वरूप ज्ञान अति जरूरी यही स्वरूपटा जो जनक उपलब्धिटा आसूँ अष्टावक्र कही सारा गुरुंर उपदेश शुणी सारा निजक अनुशीलन कर प्रकृत गुरु तो एत कथा कहीगले मु प्रकृति किए जनक ये कथा गुड़ा जोड़ा कहते शेष पर्याय अष्टावक्र गीतार तुम अनुध्यान कले देखिपर कि भाव में विश्लेषण से कर भाव से अनुध्यान कर प्रकृति किए मु शब्द नुहे मु क्या देखिकी क्या अनुशीलन करी कथा कहूनी आम समस्ते कहारी से प्रकार ज्ञान ना मु चैतन्य पर ठिया आम कथा कहूँ आम पड़िशा घरे कौन कौन घटना घटला आज बंधुबांधव मैंने कौन कौन देले आज आम स्कूल की घटना घटला मैडम मैंने कौन कौन कर सी कौन करुच्ची ये कौन कर फैक्ट्री कौन कौन असुविधा हो मोर कौटी कौन अच्छी यही खबर आम मुंड भर अच्छी यही सब खबर दबार आम धुरंधर यही खबर दौ दौ जीवन दीप फटक दिन भिजे मोर सब पड़े शुई पार उठे पार आखि आगर दृष्टांत अच्छी ना ना आम घर कहीं ना कहीं जाने गला व्यवहार जो जिनस वस्त्र पड़ी ना ना से नहीं जापारा जापर थिला बेला आकर्षण के मोर जिनसटा आकर्षण के नहीं जड़े जापर एत कथा सन्थ मैंने आमको बुझेबार उद्देश्य कौन ना बुझेबार उद्देश्य हूँ तो एमती अवस्था प्राप्त हो जा जो तो चैतन्य सहित तोर साथी हो गले तो जो अवस्था तो चैतन्य तत सहायता कर तोर अभाव पर किसी रही अभाव अभाव सब बेले कही भाव को देना मार आमर भजनटे अच्छे अभाव अभाव कहीकि भावटा को मार देना ये भाव कौन ना मो प्रकृति किए ये भावटा को तो मुंड भीतर रखिले यार महानताटा तो बुझिपारे आमर कहबार तात्पर्य हूँ मुझे गुरु वरण कर निगुरा है मरती नहीं कहीं निगुरा है निगुरा शब्दर अर्थ हो तो जहाँ कर जीवन में किंतु अति कम गोटे गुरु पाखक जा निगुरा है कि मरना अर्थात गुरु पाखक जा तार भी मूल्य अच्छे गुरु वरण न करी चलीगलु ताले गुड़ाए जिनस तो जीवन में बाकी रही तेणु जे कृष्णमूर्ति जड़े सन्थ सी कहते तोर संसार चॉइस बोली किसी ना चॉइसलेस तू चॉइसलेस अवस्था मोर एटा ना मोर सेटा मुझे भल ना सेमती भल एतिक रहा भल ना सेतिक रहा भल मोर बो भल ना मोर पुआ भल मोर नाती भल ना मोर नातुणी भल या कर दिन गला सी कहते केवल परमात्मा चॉइसलेस चॉइस ना ये किए सी किए मैं ही तो हूँ केवल आमर गुरु आमको मंत्र दे जाती किए ना मुझे जहाँ को देखे जहाँ जहाँ व्यवहार करे मैं ही तो एतिक अंत आम जीवन में प्रयोग करवा ता भीतर तो मुझे देखुची ताले जीवन ठीक रास्तार जाऊँगी जदि सेतिक न हुए
आमे जीवन को बर्बाद करदे, जीवन को नष्ट करदे। सारांश बुझीगल ना नहीं? क्या सब चेतना रखु, क्या नमस्कार कर सका उठू, क्या नमस्कार, कहार बयस गड़ी गड़ी जार गड़ू नहीं मुझे, जार गड़ी गड़ी जाऊँगी सी एक अनंत जन्म गड़ी गड़ी जाऊ किंतु मु जी से सब स्थिर, मोर चैतन्यर मृत्यु ना अच्छी मुझे चैतन्यर उपासक मु तारी उपासना कर जहाद्वारा मोर मृत्यु विषय चिंतित हो दुखी हबार किसी कारण ना। कोरोना जहाँ खाऊ खाऊ, जहाँ को न खाऊ न खाऊ, मोर ता सागर कहबार किसी कि मोर कहबार कथा हूँ मु मत जानी तेणु मोर से विषय चिंता करार कौन कारण ना। ये हूँ गुरु उपदेशर मूल जिनस एवं गुरु को श्रद्धा सम्मान प्रदर्शन कर ये हूँ बाट ना गुरु निंदा करी कहीं मनुष्य बंची ना। आम जो गुरुर बाणीटा को तार स्वरूप ज्ञान ताक जीवन में पालन कर अन्याड़े मन दौचु से आमको बुझापी हम ये गुरु निंदा ही एवं गुरु निंदा को कौन सी जगार कई गुरु गीतार देखु कौन सी जगार से बंची पार ना। जो जन्म से नौना कहीं से जन्म तार से सुख से पाइपर ना। जो गुरु निंदा कहबार अर्थ हूँ जो गुरु ता भीतर विराजमान अच्छा से गुरु को जी बुझीपारनी। कबीर कहला भाई थरे जो मो भीतर आलोक अच्छे मुझे देखिली अंधार बोली किसी रहा ना। से भाव में मुझे मो भीतर मोर चैतन्य आत्मा को देखी अंधार पवित्र दूरे अंधार किए मोर मृत्यु मत ये मिलता कि मोर या हूँता कि यही सब जिनस गुड़ा हूँ अंधार आड़ को नवा जिनस नहीं ना ना। जार जन्म टिक अच्छे जार किसी चाकरी अच्छी चाकरी पड़ेगा कौन है गोटे अंधार ढुकला ना ना। ये अंधार पर आउ गोटे अंधार, ये अंधार पर आउ गोटे अंधार, अंधार 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 हो चलो कि आलु हम कि अरे जहाँ जाऊँ जाऊ मु तो तार द्रष्टा साक्षी ना मोर कौन हम बुझीपार ना ना। कौन पर गुरु मंत्र एत प्रभावशाली ता प्रति आम ध्यान ना। जहा हो से दिगरे आम जा जी दिन आम अच्छु से परंपरा आम जा एवं से परंपरा को जीवन में पालन करवा। शांति पाठ करवा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।